now move on to the big story. It's not looking good for the Gandhis. In the National Herald money laundering case, the National Herald case that continues to haunt the Congress leadership because the Enforcement Directorate has filed the first charge sheet, intensifying legal heat and political heat too. Filed in Delhi's Rouse Avenue Court, the charge sheet names Congress MP LOP Rahul Gandhi, former party president, currently Rajya Sabha MP Sonia Gandhi, and Congress Overseas Chief Sam Pitroda, among others. ED is accusing the Gandhis of money laundering, tax evasion, financial irregularities in the alleged misuse of the funds linked to the National Herald and Associated Journals Limited. The BJP immediately jumping to launch a scathing attack, calling the Gandhis the most corrupt in the world, questioning why they fear the probe. But the Congress has hit back, calling the entire case a political vendetta that is aimed simply to target Sonia and Rahul Gandhi. I believe this is a much needed step, much awaited step by the agencies, and it's a clear-cut case of money laundering, corruption, criminal breach of trust, criminal misappropriation of property, even by public servants. So this is a very nice step which the agencies have taken, much needed in this case. Cognizance was taken back in 2014 and travelled up to the Supreme Court. Supreme Court also refused to quash it on the original complaint, which was filed by Dr. Subramaniam Swamy. So I believe this is a very correct step, and Satyamev Jayate on this. The National Herald case charge sheet is a clear case of political vendetta. The organization called National Herald is the pride part of Congress party. Our leader of opposition, Rahul Gandhi ji, is fighting against this government and Modi, Amit Shah's misrule. Because of that, they had tried to silence him and they disqualified him in a false case and vacated his house also. Now again they are trying to do this thing through this case, and we will fight it. एक फेक केस है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, निराधार है, और अंततोगत्वा इसमें कोर्ट्स ये स्पष्ट करेंगे। अभी सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है और इसको एक राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है, जो दर्शाया जा रहा है। सबके ऊपर ईडी और सीबीआई का तलाश हो रहे हैं, केस कर रहे हैं, ये तो बहुत दिनों से चल रहे हैं, इससे कोई परवाह नहीं है। हम लोग इस सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे नेता लोगों के ऊपर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर भी ये लोग केस डाल रहे हैं। सो लोगों को पता है क्या है इसमें, कितने दिन ये चलेगा। देखिए, आप भारत के लोगों को, आम नागरिक को इसके बारे में जानते हैं क्या कर रहे हैं। इससे हमको कोई परवाह नहीं है, हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इतने डर गए बीजेपी, ये तो बड़ा ताज्जुब की बात है कि इतने डरे हुए हैं। आने वाले इलेक्शन है ना 5 राज्य का, तो ये ड्रामा अभी शुरू कर देते हैं ताकि इंडिया ब्लॉक ये वो सब इफेक्ट होना है। इतने दिन क्या कर रहे थे, आज ही क्यों? ईडी, नेशनल हेरल्ड, इनको जानकारी था ना, और डराने की तरीके कि ईडी आएगी, बीडी आएगी। अरे हाय, ये क्या सोच रहे हैं कि गांधी परिवार डरने वाले हैं? डर नहीं है, डरने वाले ये है कायर, जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को मिसयूज करके ये डराने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ षड्यंत्र। कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ही आस्था उनके इस जो दावे है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कांग्रेस का भावनात्मक लगाव था, ये भावनात्मक लगाव कितना यथार्थ था ये इसका प्रमाण दे रहा है। या फिर लगाव उसकी संपत्ति से था, ना कि उसकी भावना से। इसलिए नैतिक और तकनीकी दोनों आधारों के ऊपर कांग्रेस के यह दावे बहुत खोखले, आधारहीन और दुर्भावना से प्रेरित तथा जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने के विचार से प्रेरित दिखाई पड़ते हैं। कानून के अनुसार ये संस्थाएं काम करती हैं। संस्थाएं जो हैं वो स्वतंत्र हैं, उनमें सरकार कोई ना तो दबाव डालती है, ना सरकार से कोई सीधे तौर पर कोई उससे वो निर्देश लेते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर कोई तथ्य कोई मांगता है तो उसको प्रस्तुत करना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए।
इसमें इसको पॉलिटिकल मोटिवेटेड कहना ये मैं ठीक नहीं मानता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जांच एजेंसियाँ जो है अपने काम हमेशा करती रही हैं। कांग्रेस का समय था तब भी किया, बहुत सारी जगह पर उन्होंने किया। तो ऐसा थोड़ी कि आज ही वो बनी है, तो ये तो उन्हीं के समय की बनी हुई है, कांग्रेस शासनकाल की बनी हुई जांच एजेंसियां हैं, कोई मोदी जी ने नई थोड़ी बना दी है।